everyone. Good morning. Welcome to Bio World. This is Dr. Manisha Patel here. Today in this lecture, we'll discuss about Michelson and Stahl experiment. This is the experimental proof that in DNA that replication occurs semi-conservatively. So, DNA replicates semi-conservatively. It was shown first in Escherichia coli and subsequently in higher organisms such as plants and animals. So for this first is proved in E. coli that DNA replicates semi-conservatively. Semi-conservation, semi means half, कंजर्वेशन मतलब स्टोर करना, सेव करना. जैसे ये एक डीएनए है, जब इसका रेप्लिकेशन होता है, the two strands got separated. They act as a template strand, provide information for synthesis of new strands, and based on these strands, that two new strands are formed. So from one DNA, two DNA are formed, but one is having same strand as parent and another is newly formed. So this is known as the semi-conservative mode of replication. Okay. Actually, we know that double helical structure of DNA was proposed by Watson and Crick. Immediately after that, the scheme for replication of DNA was proposed. So, Watson and Crick had proposed a scheme for replication of DNA. Okay. So to what their original statement, that is as follows. तो उन्होंने जो रेप्लिकेशन के लिए बोला था वो ऐसा है. It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggest a possible copying mechanism for the genetic material, and they suggested this in 1953, Watson and Crick. So it has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggest a possible copying mechanism. मतलब कि जब भी हम ये देखने जाते हैं पैरिंग, तो हम ये जो मैकेनिज्म है जेनेटिक मटेरियल की
उसमें से ऐसा नहीं निकल सकते कि भाई जो कॉपिंग मैकेनिज्म है वो होती है और जो एक मेन स्ट्रैंड है उसके सामने नया दूसरा पैर बनता है, राइट? ओके, सो द स्कीम suggested that the two strands would separated and act as a template for synthesis of new complementary strands. ओके, सो जैसे आपने देखा, समझ लो कि चलो ये एक डीएनए सीक्वेंस है AT AT A, चलो AG कर दो, ठीक है? तो A के सामने T, G के सामने C, A के सामने T, T के सामने A के सामने T। अब ये दो स्ट्रैंड्स सेपरेट होती हैं, AGATA, तो यहाँ पे TCTAT, right? So now these two strands act as a template and it will provide information for synthesis of new strand. जैसे A के सामने T, A के सामने T, G के सामने C, A के सामने T। सेम वे T के सामने A, G, C के सामने G, T A T A। तो फाइनली आप देखो तो ATGC ATTA AT, ATGC ATTA AT, ATGC ATTA AT, देखो सेम है, राइट? बट फ्रॉम वन पैरेंटल two cells, मतलब कि two DNA are formed. These two act as a template and provide information for synthesis of new complementary strand. So these are new strand. So that green one is new and that pink one is parental, which is act as a template strand, right? So after the completion of replication, after completion आप देख सकते हो each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand, and this is known as a semi-conservative DNA replication. क्यों उसको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोला? Because one strand parental and one new strand. आप देख सकते हो कि एक नई बनती है और एक जो स्ट्रैंड है वो पेरेंटल है। सो दिस इज नोन एज अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। एंड इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया किसने? मैसेल्सन एंड स्टार। सो नाउ लेट्स स्टार्ट that experimental proof of Messelson and Stahl. So actually Matthew Messelson and Franklin Stahl, right? And 1958. So this is also known as a Messelson and Stahl experiment. So first they grew E. coli in a medium containing NH4Cl. ओके, तो उन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया जिस मीडिया में NH4Cl था, N15 था
N15 is the heavy isotope of नाइट्रोजन। ओके, ध्यान रखो ये जो N15 है वो हैवी आइसोटॉप है, इट इज नॉट रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे जो N15 है वो हैवी आइसोटॉप है, वो रेडियो एक्टिव नहीं है, राइट। इट इज हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन। ओके, सो NH4Cl as the only nitrogen source for many जनरेशन। उन्होंने ऐसे मीडिया में ग्रो किया कि जिसमें नाइट्रोजन का सोर्स N15 था। जैसे वी नो दैट कि इन DNA विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट, सो दैट न्यूक्लियोटाइड it contains pentose sugar plus nitrogen base plus phosphate, राइट। तो ये जो नाइट्रोजन बेस है उसमें नाइट्रोजन होता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का सोर्स क्या ऐड किया, N15। इट इज हैवी आइसोटॉप, राइट। ओके, सो मॉर्नी जनरेशन नाइट्रोजन सोर्स था N15, सो the result was that N15 was incorporated into newly synthesized DNA, राइट, एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। जहां जहां नाइट्रोजन का सोर्स चाहिए था वहां पे ये N15 इंकॉर्पोरेट हो गया। दिस हैवी DNA मॉलिक्यूल could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in a cesium chloride CaCl density gradient सेंट्रिफिकेशन, राइट। फिर उसको अलग किया किसकी हेल्प से, सेंट्रिफिकेशन, बट सेंट्रिफिकेशन किया किसमें, याद रखना सीजियम क्लोराइड CaCl। ओके, खास ध्यान रखना बेटा, N15 इट इज नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, इज नॉट अ रेडियो एक्टिव isotope, right, but it can be separated from N14 only based on densities। डेंसिटी की बेस पे वो N14 से अलग किया जाता है, क्योंकि N14 है वो लाइट है, लाइट आइसोटॉप है, एंड N15 इट इज heavy isotope, and based on density they can be separated in cesium chloride। याद रखना सेंट्रिफिकेशन में क्या यूज होता है, cesium chloride। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो भी हमें DNA मिला, राइट, समझ लो कि मैं N15 पिंक कलर से यूज कर रही हूं, तो जो भी DNA होगा उसमें N15 होगा। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट। Okay, then they transferred the cells
into a medium with normal NH4Cl, but here N14, and took samples at various definite time intervals as the cells multiplied and extracted the DNA that remained as double stranded हेलिक्स। अब क्या किया कि N15 को ट्रांसफर किया, बट ऐसे मीडियम में जिसमें NH4Cl था, मतलब कि नाइट्रोजन सोर्स N14 था। फिर डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, पहले उसको मल्टीप्लाई होने दिया, मल्टीप्लाई हुआ, राइट। एंड ऐसे डीएनए को अलग किया जिसमें डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल्स थी, राइट। ओके, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको कि दैट samples were separated independently on CSCl, cesium chloride, CSCl density gradient centrifugation to measure the densities of DNA। ओके, चलो तो मैं आपको जरा दिखा दूँ एक्सपेरिमेंटल कैसे किया। तो मैसेल्सन एंड स्टाल्फ, राइट, पहले उन्होंने जो मीडिया लिया उसमें उन्होंने क्या यूज़ किया। सो देखो याद रखना है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ नहीं किया, हैवी नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज़ किया N15। अब जब उसमें ग्रो किया, राइट, और फिर ग्रेविटेशन फोर्स से अलग किया, तो पता है कि जब भी ग्रो हो रहा है इकोलाई N15 कंटेनिंग मीडियम, राइट, तो ये N15 उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो जो भी डीएनए होंगे सब में N15 होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो हमें बैंड मिला, वो था हैवी N15। फिर उसको अगेन ग्रो होने दिया 20 मिनट्स, बट अब 20 मिनट्स किस पे ग्रो किया, तो अब ग्रो किया NH4Cl बट N14। जैसे ये दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गई पिंक कलर, बट अब जो सामने नई स्ट्रैंड डेवलप होगी, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगी, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो नई ग्रो हो रही है उसमें नाइट्रोजन क्या इनकॉर्पोरेट होगा N14, क्योंकि अब हम जिसमें ग्रो कर रहे हैं वही नया न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन ऐड होगा। जैसे हमने पहले N15 में ग्रो किया तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस में N15 इनकॉर्पोरेट हो गया। जब अब हमने N14 में ग्रो किया तो जो भी डीएनए है उसमें क्या इनकॉर्पोरेट हो गया N14। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वन स्ट्रैंड पैरेंटल है, वन स्ट्रैंड न्यूली फॉर्म्ड है, सो दिस इज हाइब्रिड। तो आपको यहाँ पे हाइब्रिड बैंड मिला 14-15। अगेन 20 मिनट ग्रो किया तो अब हमें मिलेगी सेकंड जनरेशन। ये फर्स्ट जनरेशन थी, 20 मिनट अगेन 20, दैट इज टोटल 40 मिनट। तो ये 4 स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगी और नई स्ट्रैंड फॉर्म होगी, बट ये स्ट्रैंड भी कैसी होगी N14। सो जब आप उसको लास्ट में CSCl से सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आप देख सकते हो कि आपको दो जो डीएनए मिले वो लाइट थे 14-14, और जो दो मिले डीएनए वो आपको हाइब्रिड मिले 15-14। सो दिस इज सेमी कंजर्वेटिव। आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेमी कंजर्वेटिव, यहाँ पे भी सेमी कंजर्वेटिव। सो दिस इज नोन एज अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, समझ में आया, एकदम इजी है, राइट। ओके,
So the various samples with separated independently cesium chloride density gradient to measure the densities of DNA, राइट। तो आपको वहाँ पे जनरेशन 1 मिलेगी। और मैंने आपको थर्ड भी समझा दिया कि भाई सेकंड जनरेशन कैसे मिलती है। thus the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium, right? That is after 20 minutes, right? Because E. coli divides in 20 minutes. It had a hybrid, और जो डीएनए होगा वो हाइब्रिड होगा, या फिर आप बोल सकते हो इंटरमीडिएट डेंसिटी। इंटरमीडिएट डेंसिटी मीन्स क्या, ना ही वो एकदम हैवी है ना ही लाइट है, राइट। ओके, तो जैसे आपने देखा कि भाई ये आपका हैवी था 15, राइट। फिर ये स्ट्रैंड सेपरेट हुई, एक्ट एज द टेम्पलेट। आप 20 मिनट ग्रो कर रहे हो N14, तो नई स्ट्रैंड हो जाएगी 14, राइट। अगेन 20 मिनट, अगेन किस पे ग्रो करना है, 14 पे। तो चलो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये 4 स्ट्रैंड सेपरेट होगी, पिंक, इसकी पिंक, ये ग्रीन, ये ग्रीन, ठीक है। ये 4 स्ट्रैंड सेपरेट हो गई, विच एक्ट एज अ टेम्पलेट। अब उसके सामने कौन सा बनेगा, 14। तो ये हो गया 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14, 14, 15, 14, 14, 14, 14, 15, 14, 2 hybrid and 2 light। समझ में आया, 2 हाइब्रिड है एंड 2 लाइट। ओके, सो ये हमारी हो गई फर्स्ट जनरेशन और ये हो गई सेकंड जनरेशन। ओके, देन डीएनए extracted from the culture after another generation, that is after 40 minutes. So we are having second generation was composed of equal amounts of this hybrid DNA and of लाइट डीएनए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 2 लाइट डीएनए मिली, ये 2 लाइट है और 2 हाइब्रिड, तो इसका अमाउंट इक्वल हुआ ना, 2:2, 2 लाइट एंड 2 हाइब्रिड। ओके, क्लियर। ओके, so this is about Michelson and Stahl experiment, semi-conservative mode of replication. Similar experiment done by use of, most important ध्यान रखना बेटा, radioactive thymidine to detect distribution of newly
synthesized DNA in the chromosome was performed by Taylor, and that experiment was done on Vicia faba, that is faba beans, and it is done by Taylor and colleagues in 1958 and proved that DNA in chromosomes also replicate semi-conservatively, राइट। तो फ्रेंच बीन्स जैसे विक्सिया फाबा आते हैं, सो उस पर टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया इन 1958 एंड अगेन थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या यूज किया, रेडियो एक्टिव थायमिडिन। क्या यूज किया, रेडियो एक्टिव थायमिडिन, राइट। एंड अगेन दे प्रूव दैट so DNA in chromosome also replicate semi-conservatively. So this is about semi-conservative mode of replication, even also known as a Michelson and Stahl experiment. Remember that semi means half, conservative मतलब कंजर्व करना, स्टोर करना, तो यहाँ पे आधी परंपरा को वो फॉलो करता है, राइट। और from one parent two DNA are formed, one is having same as parental strand and one strand is newly synthesized. So this is semi-conservative mode of replication, that is experimental proof of semi-conservative mode of replication, Michelson and Stahl experiment done by using heavy isotope N15, not radioactive isotope, याद रखना बेटा, ओके। अब जैसे ये आपको मैंने मेसेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट समझाया, सो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि भाई मेन एम उनका यही है कि भाई जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली होता है। अच्छा, इसके बेस पे सम्स पूछे जाते हैं नीट में। जैसे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देती हूँ कि भाई ई कोलाई विच इज फर्स्ट ग्रोन इन N14, then for 2 generations they are grown in N15 and then for 1 generation on N14, तो क्या डीएनए होगा। चलो सबसे पहले याद रखो कि किस पे सबसे पहले ग्रो किया था, N14। तो मैं 14 के लिए ग्रीन कलर यूज करती हूँ और 15 के लिए पिंक, तो ये N14, ठीक है। 2 जनरेशन N15, अच्छा अब 2 जनरेशन N15 पे ग्रो करना है। मैं N15 के लिए बेटा पिंक कलर यूज करती हूँ, 2 जनरेशन, तो टाइम याद रखना 20 मिनट, अगेन 20 मिनट, तो 2 जनरेशन N15 पे किया ग्रो, तो हमें यहाँ पे मिलेगी फर्स्ट जनरेशन, हियर वी आर हैविंग सेकंड जनरेशन, ओके। चलो फिर क्या बोला, थर्ड जनरेशन N14, थर्ड जनरेशन है तो अगेन टाइम तो लगेगा 20 मिनट, सो नाउ हियर वी आर हैविंग, हमें यहाँ पे कौन सी मिलेगी, थर्ड जनरेशन, ओके। चलो ये थोड़ा हमने बेस रेडी किया। अब 14 तो है हमारे पास, ग्रो किया 15 पे,
तो पहले तो ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट होगी, तो हो गई सेपरेट। अब जो नए सामने बनेगी वो कैसी बनेगी, 15 वाली। मैंने तो कलर भी सेम यूज किया है, तो 15 मतलब कि पिंक कलर। तो ये हो गया एक में से 2। तो आफ्टर फर्स्ट जनरेशन वी आर हैविंग 2 DNA एंड बोथ आर हैविंग हाइब्रिड। चलो अब नेक्स्ट जनरेशन, तो अब ये 4 स्ट्रैंड सेपरेट होगी। तो ये पिंक, ये पिंक, ये चारों को सेपरेट करना है, ये ग्रीन और ये ग्रीन, ठीक है। 4 स्ट्रैंड सेपरेट हो गई, विच एक्ट एज अ टेम्पलेट। अब उसके सामने नई स्ट्रैंड बनेगी, बट नई स्ट्रैंड कौन सी बनेगी, हम जिसमें उसको ग्रो करेंगे। हम किस में ग्रो कर रहे हैं, मीडिया में। एंड 15 मतलब पता है पिंक कलर, तो ये हो गया आपका पिंक कलर, तो बन गए 4। चलो यहाँ पे देखो, आप कैसे समझ सकते हो ना, यहाँ पे आपके पास देखो 2 हाइब्रिड है, यहाँ पे 2 हाइब्रिड एंड 2 हैवी है, राइट। चलो अब N14 पे ग्रो करना है, तो ये 4 पहले सेपरेट होगी। तो देखो पहले इसके 2 पिंक, चलो फिर पिंक एंड ग्रीन, अगेन पिंक एंड ग्रीन, एंड लास्ट 2 पिंक पिंक। हो गई 8 स्ट्रैंड सेपरेट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई 8 स्ट्रैंड सेपरेट। चलो किसमें ग्रो करना है, N14। तो जो नई स्ट्रैंड बनेगी सारी की सारी कैसी बनेगी, 14 14 14 14 14 14 14 14। ओके क्लियर, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे हाइब्रिड कितनी मिली, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपको 6 मिल रहे हैं हाइब्रिड। चलो हैवी, हैवी मतलब पिंक पिंक, नो हैवी, 0 हैवी। एंड लाइट, लाइट मतलब ग्रीन ग्रीन, तो 2 लाइट। तो ये रेशियो पूछते हैं आपको, फर्स्ट जनरेशन पूछे, सेकंड जनरेशन पूछे, ओके। टाइम ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे देखो 20 मिनट्स, तो यहाँ पे टोटल देखने जाए तो 40 मिनट के बाद सेकंड जनरेशन और 60 मिनट के बाद थर्ड जनरेशन, ठीक है। तो ये खास ध्यान रखना, जनरेशन का टाइम पूछते हैं और जनरेशन में रेशियो पूछते हैं, वेरी इजी। कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसे पूछे, राइट, 15 के बदले 14, 14 के बदले 15, बस सिंपली जिसमें ग्रो क्रिया है सामने वाली स्ट्रैंड उसी की बनेगी। अगर मैं यहाँ पे इसके बदले 14 में ग्रो करती तो मुझे मिल जाती 14 14 14 14। ओके।